کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف کچھ باتیں سنا ہوں. کیا بات؟ کہ ان کی 50 ارب روپیہ بینک کے اکاؤنٹ میں نکلے. آپ نے جو بات کیے ہیں آپ اس بات سے توبہ کر لیں. ایسے نہ ہو ایمان کی بات اگر آپ نے توبہ نہیں کی فاولئک هم الظالمون، آپ ناانصاف لوگوں میں سے شامل ہو جاؤ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. صدق اللہ المولانا العظیم. میرے محترم دوست بزرگ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک آیات پڑھا ہوں. سورۃ الحجرات کی. ان لوگوں کے بارے میں میرے دوستوں یہ 5واں نمبر اصول ہے اس سورت کی. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والوں جب کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائیں تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو ان تصبحوا قوما بجہالۃ کہ تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر اپنے کیے پر پیشمان ہونا پڑے. لہذا کیسے ایسے آدمی کی لائی ہوئی خبر کی اچھے طرح جانچ پڑتال کرنا بہت ضروری ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اچھے طرح جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کی صحت یا عدم صحت کا یقین ہو جائے، اس کے بعد مناسب کارروائی عمل میں لا جائے. اب میرے دوستوں بات یہاں پر اس کی شان نزول تو ولید بن عتبہ کے بارے میں ہے، اس کی متعلق ہے، لیکن وہ اپنی بنو مستالق میں بنی مستالق کی ولید بن عتبہ ان کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھجوایا. اور جس قوم پر گیا تو عرب کی شان کے مطابق وہاں کے لوگ اپنے اسلحہ وغیرہ کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے آئے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجے ہیں. اب یہ مسلمان تھے اور مسلمانوں کی استقبال کے لیے وہ آگے بڑھے، لیکن ان کی ولید ابن عتبہ کی اس قبیلے کے اندر ایک دشمن تھے ان کی، جو بہت پرانے دشمنی تھا، اور جس کی بنیاد پر وہ غلط سمجھ کر اللہ کے رسول کے پاس دوبارہ مدینے پہنچ گئے کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن بعد میں یہ خبر جھوٹ نکلا. میرے دوستوں اصل بات یہاں بولنا یہ تھا، اے ایمان والوں جب کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس خبر لائیں. میرے دوستوں سوشل میڈیا کی دور ہے
और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दौर है। लोग किस्म ब किस्म की बातें बता देते हैं, किसी के बारे में फेक खबरें चलाने लगते हैं, झूठे खबर फैला देते हैं। अभी कुछ अरसा पहले अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की खबरें फैलाना शुरू कर दी, जो इंतहाई गलत कदम थे। अफवाज पाकिस्तान की बदनाम इंतहाई दर्जे का ये करते रहें और इसकी असरात बहुत ही गलत पड़ी है। और इसी तरीके से मेरे दोस्तों, किसी एक आलिम उलमा, किसी बुजुर्ग दरवेश के खिलाफ जब कोई बात आती है तो बात को एहतियात से करना चाहिए, ऐसे नहीं। गुज़श्ता 2 दिनों से काफी लोग हैं जो मुझे सवाल कर रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब के खिलाफ कुछ बातें सुना हूं, क्या भाई, कि उनकी 50 अरब रुपया बैंक के अकाउंट में निकले। तो मैंने मतलब क्या हो गया, उनकी 50 अरब रुपया अगर बैंक के अकाउंट में निकल गए हैं, माशाल्लाह, दावत और तबलीग की काम करने वाले, रिफाई काम करने वाले, दीनी मदारिस चलाने वाले हजारों लोग जो है इनको तावन कर रहे होते हैं, खुद की भी कंपनी की मालिक है, इन कंपनियां चल रहे हैं इन लोगों इनको, तो इनके लिए कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अगर 50 अरब रुपया की मालिक बन भी गया, उनकी बैंक अकाउंट में निकल भी गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। माशाल्लाह MTJ के नाम से उनकी एक रिफाई इदारा इस वक्त में बलूचिस्तान में काम कर रहा है, मसाजिद और मदारिस वगैरह की तामीराती काम जारी है इनका। लेकिन बात यह है मेरे दोस्तों कि एक गलत बात को बता देना और बातों को फैला देना। हमने देखा ट्विटर के अंदर मुझे खबर मिली है, मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे यूसुफ जमील ने यह कहा कि जिन लोगों ने इस किस्म की खबर फैलाया है ये इंतहाई झूठी खबर है और इस किस्म की भला गलत बात करना नहीं चाहिए। मेरे दोस्तों, हकीकत में जो झूठ बोलते हैं, एक झूठ के पीछे 10 झूठे और बोलना पड़ते हैं। अब ये जो इस किस्म की बातें हैं मेरे दोस्तों, किसी खबर की तहकीक कर लेना बहुत बड़ा ज़ाबिता है। मौजूदा जमाना में तबाही और बर्बादी की एक वजह इसी ज़ाबिता पर अमल दरामद का फुकदान है। नश्र इशाअत के इस जमाना में अखबारात अक्सर झूठी खबरें शाये कर देते हैं, जिनकी वजह से मुताल्लिका फर्द, जमात या मुल्क का मुस्ताल हो जाना फितरी अमर है। झूठी खबरों की वजह से बदगुमानी, नफरत, दुश्मनी पैदा हो जाती है। दूसरी नंबर बात यही है मेरे दोस्तों, जिन लोगों ने इस किस्म की बात फैला दिया, अन तुस्बिहू कौमन बिजहालतिन, कि तुम किसी कौम को नुकसान पहुंचा बैठो। किसी कौम का मतलब देखो, एक उलमा है, एक बुजुर्ग है, मुफस्सिर कुरान है ना, और बड़े 16 बयान वाले हैं मौलाना तारिक जमील साहब। पूरे दुनिया के अंदर ऐसे नहीं कि मौलाना तारिक जमील साहब के बयान नहीं सुनते होंगे। मुश्रिक भी सुन रहे हो, हिंदू भी सुनते हैं, सिख भी सुनते हैं, और मुसलमानों के अंदर सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी और शिया, हर तबके वाले, हर फिरके वाले मौलाना तारिक जमील साहब के बयान सुन रहे होते हैं। और उनकी बातों के अंदर इस किस्म की मिठास है, हर बंदे को उनको दिल चाहते हैं कि बातें सुनते रहें। लेकिन मेरे दोस्तों, एक उलमा की बदनाम पूरे उलमाओं की बदनाम है। किसी एक की भी अगर बदनाम कर दिया आपने तो गोया कि पूरे उलमा की बदनाम हो गई। तो अन तुस्बिहू कौमन बिजहालतिन का मतलब कि तुम किसी कौम को नुकसान पहुंचा बैठो, ऐसे ना हो, यानी पूरी उलमा की नुकसान कर दी तुमने इस किस्म की खबरें चलाकर। फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, तुम्हारे किए हुए पर ऐसे ना हो कि तुम खुद शर्मिंदा हो जाओ। फालतू खबर है, फेक खबर है, झूठे हैं। मौलाना तारिक जमील साहब के बेटा यूसुफ जमील ने कहा ये झूठी खबर है, आप जो बातें फैला रहे हो इसकी गलत नतीजा निकलेगा और ये इंतहाई बुरी खबर है और खुद तुम शर्मिंदा हो जाओगे। क्योंकि जिस खबर के अंदर कोई हकीकत नहीं है, ऐसे खबरों को फैलाना, और जिस बातों के अंदर कोई हकीकत नहीं है, ऐसे बातों को फैलाना, ये क्या है? ये झूठी बातें हैं। अब इस किस्म की झूठ बात को फैलाकर
लोगों की दरमियान में अफरा तफरी पैदा कर देना या लोगों को बदगुमानी या बदजन कर देना, इस किस्म की हरकत ये इंतहाई गलत हरकत है। और कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने भी तुम्हारे पकड़ होगी। यकीनन अगर तुमने इससे तौबा कर ली तो फिर तो तुम्हारे बचाव है। अगर तुमने बेगारे बेला सोचे समझे तुम जो बातें कर देते हो तो ये झूठे आदमियों की बात है। और इस किस्म की बातों से तुम जिस किस्म की बातें पेश कर दिया सबके सामने मीडिया के अंदर ना, और इसके सोशल मीडिया के अंदर जो बात डाल दी हो, तो इसका मानना तारिक जमील साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्या बातें होंगे। माना तारिक जमील साहब एक 16 बयान वाले हैं, मीठे जबान वाले हैं, तफसीर करने वाले, अल्लाह अकबर, ऐसे बयान करने वाले, अल्लाह की राह पर चलने वाले, दीन की तबलीग करने वाले, दीन की दाई और दीन की मुबल्लिग हस्ती है। तो इनकी क्या बदनाम होगी। ये ना कोई सरकारी ओहदे पर था, ना हमारे केएमसी का कोई मुलाजिम था, ना केएमसी का एडमिनिस्ट्रेटर कहीं एमसी या जो है ना किसी शहर की कोई एडमिनिस्ट्रेटर था कि माल को लूट कर जो है ना बड़े मालदार बन गए। ऐसे भी बात नहीं है कि तुम इनके खिलाफ बदनाम करोगे या नैब वाले उनके खिलाफ कोई जो है कार्रवाई करेंगे। ये फालतू खबर है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बदजन और बदगुमानी बयान करना, ये बदगुमानी पेश कर देना लोगों के सामने। ये बदगुमानी जो है, बदगुमानी में जाके लोग पड़ जाते हैं, लोग बदजन हो जाते हैं इससे कि भाई मानना तारिक जमील साहब की इतने अरबों रुपया निकल कर आ गए, तो कहा कि एक आलमी दिन होकर कि भाई इतने सारे पैसों की मालिक। तो उनकी बेटे ने कहा ये फालतू खबर, ये फेक खबर है और ये गलत खबर है। और जो इस किस्म की हरकतें करते हैं तो ये इंतहाई गलत हरकत करते हैं और इसे हरकत नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने दूसरी जगह पर फरमाया वला तल्जिमू अंफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाबि बि'सल इस्मुल फुसूक बादल ईमान व मन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया और ना जब आयब लगाओ एक दूसरे पर और ना बुरे लक़ब डालो। ये बुरा है फिस्क का नाम, ईमान की बात या अगर कोई मुसलमान तो इसे कर नहीं सकते हैं। हाँ, वो लोग कर सकते हैं जो माना तारिक जमील से खफा है या माना तारिक जमील से बदगुमानी रखता होगा। ये वो लोग हैं जो माना तारिक जमील साहब की बातों से उनको किसी किस्म की कोई जो है ना उनकी जिस्म में आग लगता होगा। इब्लीस को ही आग लगती है या किसी बेईमान को या किसी फासिक को उनकी बातों से आग लगेंगे। बल्कि मौलाना तारिक जमील साहब तो सिखों को जाके बयान करते हैं। हर किस्म की फरके को लोग उनकी बातें सुन रहे होती हैं, उनके बयान सुन रहे होती हैं। पूरी दुनिया के अंदर लाखों फॉलोअर है उनकी, बयान सुनने वाले उनकी लाखों लोग हैं कि उनके बयान को सुकून से जो सुन रहे होती हैं। लेकिन इस किस्म की बातें एक उलमा के खिलाफ बात करना इंतहाई गलत बात थी, इंतहाई गलत कदम है, इंतहाई बदगुमानी वाली बात है, इंतहाई बदफेल वाली बात है। गलत इस किस्म की बात को कभी नहीं करना चाहिए, ये गलत अमल है। आपने जो बात किए हैं आप इस बात से तौबा कर लें। ऐसे ना हो ईमान की बात अगर आपने तौबा नहीं की फौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, आप नाइंसाफ लोगों में से शामिल हो जाओ। फौरी तौर पर इस बातों से तौबा कर लो। जबकि उनके बेटे ने इस बात की रद्द कर दी है कि ये कोई हकीकत नहीं है, दूर दूर तक इसका कोई हकीकत नहीं है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये गलत बातें कर रहे हैं, लिहाजा इन गलत बातों से तुम्हें तौबा कर लेना चाहिए। अगर तुमने तौबा नहीं की तो तुम नाइंसाफ लोगों में शामिल हो जाओगे, गुनाहगार लोगों में शामिल हो जाओगे, यकीनन जालिम लोगों में शामिल हो जाओगे। तो जालिम से, जुल्मत से बचने के लिए और नाइंसाफ लोगों से बचने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? तौबा करना चाहिए। जिन लोगों ने इस किस्म की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर या सोशल मीडिया में इस किस्म की बातें छोड़ दी है, उनको बराए रास्त मौलाना तारिक जमील साहब से माफी मांग ले और अल्लाह से भी तौबा कर ले और मौलाना तारिक जमील साहब से ये इकरार भी करा ले कि हजरत आपने मुझे माफ कर दी है कि मैंने ये गलत बात की आपके बारे में और आपके बारे में लोगों को मैंने बदगुमान करते रहे और बदजन करते रहे, लिहाजा आप मुझे भी माफ कर दें, अल्लाह भी मुझे माफ फरमाए। तो ये इस बात की बुनियाद पर यकीनन आपकी माफी हो जाएंगे, वरना आपकी किसी सूरत में माफी नहीं है। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दामाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।